Good evening to everyone present. This is Megha Patel, team member of Kash Foundation. I heartily welcome you all to the ninth medical webinar of Kash Foundation under Kash Swasthya Manthan. Under its health vertical, Kash Foundation, in association with UMASA, Munova, and Mumbai Vidyapit, organized a free naturopathy medical camp on 16th November 2019. It was supposed supported by Ministry of Ayush, Government of India, and International Naturopathy Organization. Kash Foundation organized the first and second medical webinar on the 21st and 23rd of May, respectively, on the health precautions to be followed after the lockdown. The speaker for these webinars were Dr. Parag Mehta, Dr. Jitendra Arya, Dr. Sushant, and Dr. Suryahan Dongre. The third medical webinar was conducted on the 5th of June on how to build physical and mental immunity. The speaker for this session was Dr. Renuka Vyas. On the eve of International Day of Yoga, Kash Foundation's Kash Swasthya Manthan and Kaivalya Dhama Mumbai organized a three-day medical webinar series on 19th, 28th, and 21st of June 2020. The speaker for the fourth medical webinar was Dr. Jawahar Mehta, who spoke on yoga, psychology, and psychiatry on 19th June. Sri Ravi Dikshit was the speaker for the fifth health event of 20th June. He gave a speech on yoga and lifestyle. On 21st of June, Dr. Apurva Shenoy spoke on yoga and diet as a speaker for the sixth webinar. On 9th of July, we conducted seventh medical webinar in which Dr. Jyoti Kumbhar was the speaker who spoke on the role of naturopathy and yoga on women's health. On 10th of July, we had our eighth medical webinar in which Dr. Roshan Amal from NIN was the speaker who spoke on effect of emotions on health. Now today, I once again welcome you all to the ninth medical webinar under Kash Foundation's Kash Swasthya Manthan. Now I would request our founder trustee, Dr. Avkash Jadhav, to give us introduction about Kash Foundation. Thank you, Megha. And on behalf of Kash Foundation, as a volunteer and a founder trustee, we welcome you all for the ninth medical webinar. Kash Foundation is a trust and NGO which was started in Mumbai in 2019. We work on four verticals primarily: E2 and H2, education, environment, health, and heritage. The focus of foundation has always been to give rather than to receive. All our standing life, we have been gaining so much from our environment, from nature, from people around us. And I guess this is the time where we should also reflect upon and have introspection that what is that we can give back? Because ultimately, we are known for what we give, not for what we receive. And taking that kind of a concept and a norm, Kash Foundation, in fact, initiated multiple level activities. We are also strongly engaged in various academic webinars where we are trying to churn out the best knowledge, which can, of course, enhance and improvise our learning skills as well as the teaching skills. The approach of Kash Foundation has always been that wherever power, wherever misunderstanding, wherever disharmony prevails and it is in arrogant form, we try to neutralize it. We try to minimize it. We try to engage in a society which, in fact, is healthy for all, a society which, in fact, looks forward for collective benefit. Ultimately, we, as the volunteers and the committee members and the members, team members of Kash Foundation, we try to engage in all the possible constructive ways where we, of course, should be proud of what we are doing today. And of course, in a manner where the generation next, we can always tell them the stories that what we did when it was our turn to do our duty. So I once again welcome you all on behalf of Kash Foundation. We welcome Dr. Kamath for giving his consent to speak on this wonderful topic for that matter. I remember a small incident. There was a small child in a cradle, and each individual would go to the child and would talk, try to engage with the child. And the child was silent, quiet, with the eyes rolling around. After some time, the child suddenly started crying. And then you try to trace who visited the child in the last.
And then we inquired with the person, said, "What is that you did to the child?" The child started crying, and the person replied, saying, "No, I just looked at the child and I tried to frown. And look at the energy, look at the toxicity, which perhaps got passed, and this child reacted in such a vociferous manner." So हमारे आसपास भी बहुत सारी टॉक्सिटी अवेलेबल है जो शायद हमको दिखती नहीं है, और या हम शायद कहीं पे उस अवेयरनेस में होते नहीं है। ये टॉक्सिटी बहुत जगहों की है, डिजीज की है, लोगों की है, एनवायरनमेंट की है। तो मुझे लगता है जो आज का वेबिनार है, ये इतना अच्छा इसका टॉपिक है, एंड वी आर अगेन क्वाइट ऑनर्ड टू हैव डॉक्टर कामत, not only versatile doctor, of course, but a wonderful human being as well. So I once again welcome you all on behalf of Kash Foundation. Over to you, Megha. Now I invite Dr. Renuka Vyas, the Joint Director of Kash Swasthya Manthan, to give introduction about Kash Swasthya Manthan. Thank you, Megha. Good evening, all of you. स्वास्थ्य अनमोल, इसका नहीं है कोई मोल। स्वास्थ्य जीवन पाने के लिए हमें अपने आप का अध्ययन करना जरूरी है, और तभी इस मंथन से हमें आरोग्य रूपी अमृत मिल सकता है। सो काश स्वास्थ्य मंथन। Kash Swasthya Manthan is a vertical of Kash Foundation, which provides services to the society in various fields. Kash Swasthya Manthan is actively involved for the benefits and self-development of each and every individual of the society, whether it is poor, middle class, or rich. Its main aim is to provide and promote the best and easiest affordable services in the field of nature cure for eradication of various elements without medicines, but with the help of Mother Nature. Kash Swasthya Manthan is a group of dedicated and sincere professionals of the field of alternate therapies, wherein to fulfill the dream, they work selflessly and happily with only expectation of health and happy society. Thank you so much again to all of you. Over to you, Megha. Thank you so much, ma'am. Now I introduce our today's speaker, Dr. Narasimha Kamath. He is an ND from International Institute of Natural Therapy from Mumbai. He has done diploma in naturopathy and yogic sciences from All India Nature Cure Federation in Delhi. He is also a vegan diet consultant and iridologist. Dr. Narasimha Kamath is a visiting faculty at Shantivan Trust, Snehalata Ashram. Today, he will be speaking on the amazing healing powers of nature. Sir, I would like to request you to unmute yourself and keep your video on. This floor is yours, sir. कामत सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है। कामत सर, अनम्यूट। हेलो, आ रहा है? यस यस, परफेक्ट। अभी आप शुरू कर सकते हैं। ओके, तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ नेचुरोपैथी, क्योंकि भले 6-7 साल 8 साल जो है स्कूल जाके कॉलेज जाके हमने पढ़ाई की नेचुरोपैथी के जो क्लासेस अटेंड करके, आज के तारीख में जो है हर पेशेंट हमको कुछ ना कुछ नया सिखाता है। Sir, your voice is not audible. Please unmute yourself again.
Now am I audible? हाँ सर. Our only reason Yes. to try is get it well. Okay, now. Then time goes on. Yes. Okay. So today a time has come with 20 years of experience in seeing patients and treating them. I have come to a conclusion that every patient teaches you something, because all 5 fingers are not alike. With the same problem, different patients react in a different way. So we have to update our knowledge and with the experience that what we learn. Now what is naturopathy? निसर्गोपचार क्या है? ये कोई चिकित्सा क्रम है? ये कोई जीवन क्रम है? क्या हम डॉक्टर हैं? क्या हम कौन हैं? इंटरनेशनल पार्लेंस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमें जो है चिकित्सक बोला जाता है, मीन्स हीलर्स. बट मैं तो लोगों को बोलता हूँ आई ट्रीट, नेचर हील्स. प्रकृति से जो है इलाज होता है, हम हीलिंग नहीं करते. फिर भी हम लोगों को चिकित्सक बोला जाता है. कोई बात नहीं. मगर ये निसर्गोपचार क्या है, ये मेरे 20 साल के तजुर्बा से जो है मैं इसकी व्याख्या ऐसे कर सकता हूँ. इंग्लिश में मैं बताऊंगा आपको. नेचुरोपैथी इज ए डिसिप्लिन ऑफ राइट लिविंग, माने सही जीने का एक जीवन क्रम, इन कंप्लायंस विद द लॉज ऑफ नेचर, माने प्रकृति के जो नियम है उसके अनुसार हमको जीवन में जो है जिंदगी बितानी है. किस लिए? फॉर ए लाइफ टाइम ऑफ साउंड हेल्थ विथ नो इल्स, नो पिल्स एंड नो हॉस्पिटल बिल्स. तो आपको शायद आश्चर्य होगा कि ये जो है मुमकिन है या नहीं, मगर एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल मैं खुद हूँ. ये बम्बई में जुलाई 2006 में जो है ट्रेनों में जो है बॉम्ब ब्लास्ट हो गए थे, तो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में भी बैठा था. मेरे बाएं तरफ के जो है 4 जन गए, उनके सामने के 3 जन गए, मेरे राइट में बैठा हुआ वो भी गया, उसके सामने वाला दोनों पैर उसके जो तली से जो है अलग हो गए. ऐसे हालत में बाकी डिब्बे के पब्लिक ने आके मेरे को गाड़ी से उतारा. मेरे को दिखता नहीं था बराबर, चश्मा टूट गया था. मगर जो मैंने वो दिन देखा वो आज भी मैं जो है जब ये सोचता हूँ या दिखता हूँ, ये सामने आता हूँ या बोलता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डर लगना चालू हो जाता है. मैं डिप्रेशन में था 3 दिन 4 दिन. तो मैं वैसा भी कैसे भी करके खाट नाटक के बीच में से जो है गोली मार जाके रिक्शा पकड़ के घर गया. मैं रहता हूँ दहसर. घर जाने के बाद मालूम पड़ा टीवी देखने के बाद कि ये बॉम्ब ब्लास्ट था. जैसा रिक्शा से उतरा मैं, वैसा दिल्ली से मेरे को टेलीफोन आया कि सर आप ट्रेन में आज सफर नहीं करना, बम्बई में जो गाड़ियों में लफड़ा है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं. तो मैंने बोला उनको कि जब मैं ऑलरेडी पहुंच गया घर पे, मैं आधा घंटे में जो है आपको टेलीफोन करता हूँ. जैसे घर गया तो सीधा नहाने गया. तो जब नहा रहा था वाटी पर जो है ब्लड जो है थूकने के टाइम जो है ब्लड निकल रहा था. ये ब्लीडिंग कहाँ से? तो देखो हम लोग जो है लाइन के लोग हैं, मानव शरीर जानते हैं. तो ये ब्लड कहाँ से आता है? मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, मैं बेहोश नहीं हूँ, पेन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, मगर ब्लड कहाँ से आता है? तो मैं बोला ये अभी मेरी बस की बात नहीं है. आई हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम ए प्रोफेशनल, आई कैन नॉट ट्रीट माई सेल्फ. तो मैं मेरे कजिन के पास गया जो एमडी एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है. वो डर के बैठा था, उधर पास में रहता है वो. उसने उसके बीवी को बुलाया, उसने मेरे को एग्जामिन किया. बोले कुछ नहीं है, वाइटल पैरामीटर्स ओके है, थोड़ा टैकिकार्डिया है, माने पल्स रेट बढ़ गया है. बाकी का जो कान का ब्लीडिंग है वो कल अपने को एएनटी को अभी कोई नहीं मिलेगा, कल दिखाना पड़ेगा, कल बाकी का इन्वेस्टिगेशन करा लेंगे. ठीक है. दूसरा दिन जाके हमने जो है ब्लड टेस्ट करवाया, एक्सरे करवाया, ईसीजी करवाया. तब ब्लड वगैरह करके जो है रिपोर्ट तो छाप को मिलने वाला था. तो उसके बाद में एएनटी के पास गया. एएनटी वाले ने देखा तो बोले अंकल ये जो है कठिन है, आपका 75% परफोरेशन लेफ्ट ईयर में है, ईयर ड्रम में, और राइट ईयर ड्रम में 65% है. इतना ही नहीं, ऑडियोग्राम बोलता है कि यू हैव बायलैटरल सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, ऑडिटरी नर्व भी डैमेज हो गई है. मैं डिप्रेस हो गया, कान गए, उधर गया. और फिर बाद में जो है जो डिप्रेशन में गया 3 दिन 4 दिन, वही दिन शाम को जो है मेरे घर में सब लोग आए.
रेणुका मैडम, जो रेणुका जी है वो आई, अलकेश आया, और एक डॉक्टर चौहान आए। वैसे जो देखो मैं पढ़ाता हूँ, आई एम ए टीचर इन दिस फील्ड, तो बहुत सारे मेरे जो है विद्यार्थी भी आए, कलीग्स भी आए, तो इन लोगों ने आपस में मीटिंग करके जो है दूसरा दिन से उनका ट्रीटमेंट चालू। मैंने गोली नहीं ली, मैंने दवाई नहीं ली, खान पान, व्यायाम और आराम, योग और खान पान। तो जो डर के मारे मैंने जो है सब रूम के लाइट चालू रखे थे, 3 बेडरूम, हॉल, किचन के सब लाइट चालू, कॉल बेल बंद, टीवी बंद। तो एक डॉक्टर चौहान है मेरे पास जो सुजोग प्रैक्टिशनर है, बोले सर आप चिंता मत करो, आपका 3 दिन में मैं डर निकाल देता हूँ। 3 दिन में उन्होंने जैसा मेरे से वादा किया था, उन्होंने मेरा डर निकाल दिया। लाइट बंद हो गए, टीवी और कॉल बेल चालू हो गया, मगर मैं सो नहीं सकता था, न बैठ सकता था, न चल सकता था। मेरे को स्पाइनल इंजरी थी और मेरा लेफ्ट साइड का फेफड़ा पूरा गया था, फट गया था फुगे जैसा। आज भी मैं एक फेफड़े पे जी रहा हूँ। मेरा स्पाइनल इंजरी है, चलने के टाइम थोड़ा तकलीफ होता है, मगर फिर भी मैं जो है आम आदमी जैसे काम करता हूँ, 12 से 14 घंटा काम करता हूँ। पेशेंट दिन में सिर्फ 2 ही देखता हूँ, और लेक्चर के लिए, व्याख्यान देने के लिए, कैंप्स के लिए वगैरह वगैरह में देश भर में, देश प्रदेश में घूमते रहता हूँ। मेरा मिशन एक ही है कि गांधी जी का जो अधूरा सपना है वो पूरा करना। गांधी जी का एक ही सपना था, टू टेक नेचर क्योर टू एवरी डोर स्टेप इन द कंट्री। मैं कन्विंस्ड हूँ, मेरे को खातिर हो गया है कि जो है नेचर क्योर इज द बेस्ट, क्योंकि हम दवाई नहीं देते, नो ड्रग्स, नो इन्वेसिव थेरेपी, इंजेक्शन भी नहीं, ऑपरेशन भी नहीं। हमारा एक ही दो सूत्र है, एक ही मंत्र है। हम बोलते हैं मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सभी रोगों की एक ही दवा, योग भगाए रोग। मैंने जब मेरी व्याख्या बताई नेचुरोपैथी की, उसमें हमने बताया था इन कंप्लायंस विद द लॉज ऑफ नेचर। और ये लॉज ऑफ नेचर क्या है, प्रकृति के नियम क्या होते हैं? देखिए, यह ब्रह्मांड के अंदर अलग अलग टाइप के जीव जंतु हैं। बैक्टीरिया है, वायरसेस है, उसके अलावा जो है पेड़ पौधे हैं, छोटे झाड़ हैं, बड़े हैं, फिर जंगली जानवर है, पानी में रहने वाले जानवर है, गाय भैंस है, कुत्ता बिल्ली है, अलग अलग टाइप के माने पालतू जानवर है, जंगली जानवर भी है। इनमें से सिर्फ ये जो प्राणी जिसका नाम है मानव, ये एकमेव जो है प्रकृति का नियमों का उल्लंघन करता है, और इसके कारण वो बीमार होता है। तो इसके लिए उसको डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, सुपर स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है, दवाखाने की जरूरत पड़ती है, हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, और 5 स्टार हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है। दूसरा, कोई भी जीव जंतु जो है उनका कोई डॉक्टर नहीं है, न कोई अस्पताल है। क्यों? वो प्रकृति के उल्लंघन नहीं करते। उल्लंघन का मतलब क्या? अभी हम कौन सा उल्लंघन करते हैं? मानव प्राणी एकमेव है जो अपना खाना पका के खाता है। मानव प्राणी जैसा उसको ऊपर वाले ने बनाया है, वो फलाहारी है। उसको सीजनल और रीजनल फल खाने हैं। इसका मतलब न्यूजीलैंड से कीवी फ्रूट, या थाईलैंड से ड्रैगन फ्रूट, कैलिफोर्निया एप्पल्स या फ्लोरिडा ऑरेंजेस नहीं खाना है। अपने को नागपुर के संतरे खाने हैं, जलगांव के केले खाने हैं, नासिक के जो है अंगूर खाने हैं, और महाबलेश्वर के जो स्ट्रॉबेरीज और जो भी फल जो है सीजनल और रीजनल, कश्मीर के एप्पल खाने हैं। हम खाते हैं, फल खाते हैं। कैसे खाते हैं? हम घर लाते हैं, उसको जूस निकालते हैं, कढ़ाई में डालते हैं, शक्कर डालते हैं, उसका कंप्लीट गर्म करके उबाल करके जो है उसका अलग अलग फैंसी नाम देते हैं, जैम्स, जेलीज, मार्मलेट्स। मगर मिलता है क्या हमको? मिलता है कुछ नहीं, जहर। तो प्राकृतिक चिकित्सा और बाकी चिकित्सा क्रम, इसमें क्या फर्क है? जैसा कि एलोपैथी या हम वेस्टर्न मेडिसिन बोलते हैं, पाश्चात्य पद्धति, आयुर्वेद
सबसे पुरातन जो है हमारा जो चिकित्सा क्रम है आयुर्वेद, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, इन सब में और ये निसर्गोपचार में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इतना ही है, ये सब चिकित्सा क्रम जो है वो आपके जो है सिम्टम्स का ट्रीटमेंट करते हैं। सर दर्द है तो सर दर्द का ट्रीटमेंट, पेट में दर्द है तो पेट दर्द का ट्रीटमेंट, ये चिकित्सा क्रम है। और निसर्गोपचार चिकित्सा क्रम नहीं है, ये एक जीवन क्रम है, डिसिप्लिन ऑफ राइट लिविंग, सही जीने का जीवन क्रम। सही का मतलब क्या है? सही खाना, खाने में भी कब खाना, कैसे खाना, कितना खाना, क्यों खाना, ये चीज जो है हमें सिखाया जाता है। ऋतुचर्या, दिनचर्या, ये सब चीज जो हमें सिखाया जाता है। तो इसका हम प्रचार प्रसार करते हैं, इधर इधर जाते हैं उधर प्रचार प्रसार करते हैं। जिसका पेट हो साफ उसे सब रोग माफ। गांधी जी जो है प्राकृतिक चिकित्सा का जो है पालन करते थे। क्यों? उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कब्ज। और आज के तारीख में हमारे देश में नहीं, पूरे दुनिया में 1000 में से 999 लोग, 999 आउट ऑफ 1000 सफर फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। आप जो कब्ज बोलते हैं और हम जो कब्ज समझते हैं वो दो अलग चीज है। एक कुदरती चिकित्सा माने निसर्गोपचार के हिसाब से अगर आप 4 बार खाएंगे तो आपको टॉयलेट 4 बार जाना है। हम दिन में इधर बंबई वाले जो है 8 बार 10 बार खाते हैं और बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं रोज सुबह जाता हूँ। ये वैसा नहीं है, अगर 4 बार खाएंगे तो 4 बार जाना चाहिए। बोला जाता है एक खाने वाला योगी, 2 खाने वाला भोगी, 3 खाने वाला रोगी और 4 खाने वाला महारोगी। हम 10 बार खाते हैं तो इसको क्या बोले? ये जो डायलॉग मैंने सुना था स्वामी जी के जो है प्रवचन में, जब मैं 18-19 साल का था। गीता ज्ञान यज्ञ जो है स्वामी चिन्मयानंद जी का जो है क्रॉस मैदान में बम्बई में होता था, तो मैं सुनने जाता था। वो दिन चिन्मयानंद जी नहीं थे, दूसरे स्वामी जी ने जो है प्रवचन दिया, तो उसमें उन्होंने बताया हम कामत माने हम होटल वाले बांद्रा के। तो मैंने आके मम्मी को बोल दिया कल से जो है मेरे को दोपहर को खाने के लिए जो है तो प्रेशराइज नहीं करना, फोर्स नहीं करना, मैं दोपहर का खाना बंद। तो क्या हुआ तुमको? आज क्या हो गया? होता कुछ नहीं। मैं स्वामी जी के प्रवचन में गया था, उन्होंने बोला है एक खाने वाला योगी 2 खाने वाला भोगी। वो कुछ बोली नहीं, बुरा लगा उसको। तो हम डैडी से डरते थे, तो डैडी के पास जो है कंप्लेंट गया, बोले ठीक है अभी जो है ये उम्र ऐसी है, उसको जो है जो करना है वो करने दो। वो कोई लोखंड के कारखाने में काम नहीं करता है, भूख लग गया तो अपना होटल में जाएगा खाएगा, चुपचाप तुम चुप बैठो, तुम टेंशन मत लो। तब से हमारी 1973 से आज तक मैं दोपहर को खाता नहीं हूँ। हाँ, शादी में या फंक्शन में गया तो थोड़ा खा लिया, बात अलग, बट अदरवाइज एज ए रूल मैं दोपहर को कुछ खाता नहीं हूँ। मैं एक ही टाइम रात को खाता हूँ, और वो भी शाकाहारी। तो 1973 से आज तक मैंने एक क्रोसिन गोली खाई नहीं है। फार्मा इंडस्ट्री में बेची है करोड़ों में, बट मैंने खाई नहीं है। ये इतना बड़ा हादसा हो गया, मैंने गोली खाई नहीं है। बंदूक की गोली मैंने नाम ही रखा है, बंदूक की गोली। इसका मतलब ये नहीं कि मैं एलोपैथी के खिलाफ हूँ, नहीं, मैं एलोपैथी के खिलाफ हूँ, न आयुर्वेद के खिलाफ हूँ, न यूनानी, सिद्धा, क्योंकि मैंने अलग अलग टाइप के जो है चिकित्सकों को देखा है। अगर कोई भी चिकित्सा क्रम का एक्सपर्ट आपको मिले तो वो चमत्कार कर सकता है। जैसा मैं जो है हर एक मेरे व्याख्या में बोलता हूँ कि प्राकृतिक चिकित्सा ये चमत्कारी चिकित्सा, रॉ डाइट इज मिरेकल मेडिसिन, ये बोलते रहता हूँ। क्योंकि हमें बोला जाता है, सिखाया जाता है रॉ फूड इज गॉड्स फूड। हम मंदिर जाते हैं तो फल लेके जाते हैं, फूल लेके जाते हैं, हम कोई वड़ा पाव नहीं लेके जाते। आजकल के बच्चों को जो पिज्जा और बर्गर पसंद है, तो पिज्जा बर्गर और मैगी नूडल्स तो नहीं लेके जाते मंदिर में, वो फल लेके जाते, फूल लेके जाते। क्यों? रॉ फूड इज गॉड्स फूड, cooked food is devil's food, raw food is living food, it is live food, and cooked food is dead food। ये स्टैंडर्ड सेइंग जो है निसर्गोपचार में हमको सिखाया गया था, तो उसको मैंने और एक लाइन जोड़ दिया। मैं हर एक व्याख्या में बोलता हूँ, आज भी बोलूंगा कि रॉ डाइट इज मिरेकल मेडिसिन। आपकी कैसी भी बीमारी है, आप अगर पैदल चल के मेरे पास आ सकते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ
कि आपकी 25 साल पुरानी बीमारी भी है तो 4 दिन में आपको फर्क महसूस होगा, 8 दिन में घर वाले समझेंगे फर्क पड़ा है, 15 दिन में रुपए में 8 आने का फर्क पड़ता है, और महीने भर में 75% आप जो है ठीक हो जाते हैं। जैसे सोराइसिस है, जैसे आमवात है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, जैसे ब्रोंकल अस्थमा है, 75% 1 महीने के अंदर, और बाकी का 25% शरीर टेक ओवर करता है। डाइट आपको 3 महीना फॉलो करना है, उसमें पहले महीने में जो है आपको 1 महीना रॉ डाइट फास्ट वगैरह होता है। ये हमारा चिकित्सा है। तो निसर्गोपचार से हम रोज चमत्कार देखते हैं। ये कैसे होता है, मेरे पास उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैं लोगों को बोलता हूँ कि चिकित्सा चालू करने के पहले जो भी आपका कुलदेवत है उसको नमस्कार करो। प्रेयर इज एन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ आवर ट्रीटमेंट। एलोपैथी में, आयुर्वेद में, सिद्धा में, यूनानी में जो है उनके अलग अलग तरीके हैं। जैसा टिबेटन मेडिसिन है, चाइनीज मेडिसिन है, हम उसके खिलाफ नहीं है। और एलोपैथी में मैंने जो 33 साल निकाले हैं उधर भी मेरे को बहुत सारा जो है मानव शरीर के बारे में मेरे को जो सीखने को मिला है। मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। अगर एक्सीडेंट का मेरे पास किसी को उठा के लेके आता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भेजूंगा उसको। अगर पेशेंट मेरे पास आता है, उसको मालूम पड़ता है हमको कि उसको हार्ट अटैक आने वाला है, घंटे भर में, 2 घंटे भर में, दिन में, 2 दिन के अंदर, मैं उसको पहले जो है एम्बुलेंस बुला के जो है आईसीयू में भिजवा देता हूँ। कोई भी सिस्टम के हम खिलाफ नहीं है। निसर्गोपचार ये जीवन क्रम है, ये कोई चिकित्सा क्रम नहीं है। तो ये हो गई निसर्गोपचार और बाकी चिकित्सा क्रम की बात। फिर निसर्गोपचार में हम क्या करते हैं? निसर्गोपचार में आते कौन? हमारे पास रोगी लोग आते, डायरेक्ट कोई नहीं आता है। क्योंकि निसर्गोपचार क्या है ये लोग जानते नहीं है। इसके लिए हम जो है लोगों के यहाँ जाके जो है व्याख्या देते हैं, लेक्चर देते हैं, कैंप्स करते हैं, कि लोगों में जो है जानकारी लाने के लिए। ये बहुत सरल है, इसमें कोई ड्रग्स नहीं है, नो ड्रग्स। तो इसमें कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं है, कोई एलर्जी नहीं है, रिजल्ट गारंटीड, और एलोपैथी और आयुर्वेद से भी फास्ट। तो डिजीज, व्हाट इज डिजीज? दिस इज माने आराम। यदि आदमी को आराम नहीं है वो डिजीज होता है, दैट मीन्स बीमार होता है। वो सर दर्द भी होवे, पेट में दर्द होवे, कुछ भी, दैट इज बीमारी। हम ये डिजीज जो है कैसे निकालते हैं? आपके शरीर द्वारा। हम आपका जो है पेट दर्द या सर दर्द के ऊपर जो है हम इलाज नहीं करते, हम होलिस्टिक हीलिंग। होलिस्टिक का मतलब है वी ट्रीट द बॉडी प्लस माइंड प्लस सोल। हम सिर्फ जो है आपके शरीर के ऊपर जो है चिकित्सा नहीं करते, आपके ऊपर चिकित्सा करते हैं, शरीर, मन और आत्मा। किससे? खान पान, व्यायाम और आराम। व्यायाम और आराम माने योग। इसमें हम आपको गारंटी देते हैं और बोलते हैं प्रेयर इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर ट्रीटमेंट। तो आपको शक्ति, आशीर्वाद अगर ऊपर वाला देवे, भगवान देवे, तो आप जल्दी ठीक हो जाते हैं। और वो भगवान जो है हमारा साथ देता है। हमको भी जो है प्रार्थना करनी पड़ती है पेशेंट को देखने के पहले, कि उससे मांगना पड़ता है कि मेरा पेशेंट है, वो तकलीफ में है, परेशान है, तो तुम्हारा अगर आशीर्वाद है तो मैं जो है उसको जो चिकित्सा दूंगा इसमें वो ठीक हो जाएगा। तो उससे मैं बात करके जो है उससे मांग लेता हूँ कि बाबा मेरे को भी शक्ति दो, तो वो दे देता है। और पेशेंट जो है 8 दिन के अंदर पैदल आता है, पैर छू के जाता है। ये जो आशीर्वाद मिलता है, पैसे से ज्यादा हम लोगों को आशीर्वाद ज्यादा मिलता है। क्योंकि हमारे पास आने वाले कौन? ये पहले जो है ये वेस्टर्न मेडिसिन जो है, एलोपैथी के जो है दवाई खाते हैं, बंदूक की गोलियां खाते हैं। उसके बाद कंठाल के जो है बीमारी ठीक नहीं होती है तो जो है वो जाते हैं आयुर्वेद के पास। आयुर्वेद के पास जाएंगे किधर? फिर जाएंगे होम्योपैथी, शक्कर की गोली खाने के लिए। शक्कर की गोली खाने के बाद में भी जो ठीक नहीं होता है तो फिर उनको जो है वो तंग आ जाते हैं। फिर बाद में जाते हैं होम्योपैथी के बाद तिरुपति।
तिरुपति के बाद जाते हैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, फिर मांत्रिक, तांत्रिक, सांत्रिक सब जो है खत्म करके सबने हाथ ऊपर करने के बाद कोई तो बोलता है, उनको बोलता है कि वो उधर एक रेणुका मैडम आती है, उसके पास जाओ, या वो एक उधर जो है पहाड़ पे जो है वो दहसर में एक बूढ़ा रहता है, बूढ़ा खड़ूस है, तो गुस्सा जल्दी आता है, 2 घंटा पकाता है, मगर साला गारंटी देता है, क्योंकि बाय एक्सपीरियंस जो है कॉन्फिडेंस भी आ जाती है। तो हम गारंटी भी देते कि 4 दिन में फर्क पड़ता है, 4 दिन नहीं, एक ही पहले दिन से ही जो है फर्क महसूस होता है। जिसने चिकित्सा किया है उपचार में जो है, और पहले जो है लोग जाते थे उर्ली कांचन जाते थे, बहुत से जगह जाते थे, अभी वैसे ही जो है कोई फॉर्मल माने सब चीज महंगा हुआ है और डिसिप्लिन जगह ढंग का जो है ट्रीटमेंट कहीं भी नहीं मिलता है। और हमारे पास हॉस्पिटल नहीं है, मैं कंसल्टिंग प्रैक्टिस करता हूँ, मगर जो ट्रीटमेंट की जरूरत है मेरे चिकित्सक जो है, उपचारक जो है, उनके पास जाके जो है मसाज है, स्टीम है, एनिमा है, ये चीज जो है घर जाके करके आते। ये हो गया निसर्ग उपचार। बीमार किस वजह से होता है ये हमने आपको बता दिया। बता ये नहीं कि प्रकृति के नियम क्या, ये निसर्ग उपचार क्या है, ये जो चीज समझने के लिए हमको जो 10 साल लगे, आपको मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। निसर्ग का जो है नेचुरोपैथी के जो है पहला नियम है यूनिटी ऑफ डिजीज, which means all diseases are the same, which means typhoid is equal to cholera is equal to chikungunya is equal to leptospirosis is equal to AIDS is equal to cancer। अब ये मैं जब एक स्टेटमेंट व्याख्या करता हूं तो लोग तो समझते हैं कि भाई ये आदमी पागल है। पागल नहीं हूं, ये सही बात है। All diseases are the same and they are a result of violation of nature's laws। ये प्रकृति का पहला नियम है। दूसरा नियम है यूनिटी ऑफ क्योर। कोई भी बीमारी होवे हमारे ट्रीटमेंट एक ही है, और ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द डिजीजेस इज द सेम। हम आपको जो है प्रकृति के करीब ले जाते हैं, और हमारी चिकित्सा होता है, मैंने बोला आपको खान पान, व्यायाम और आराम, और उसमें भी 1 महीना मैं आपको कच्चा खाना देता हूँ, रॉ डाइट फास्ट। उसके अलावा हम जो है प्रकृति के पंच महाभूतों का भी जो है प्रयोग करके 5 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ नेचर, मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, ये तत्वों का जो है हम आपको चिकित्सा देते हैं। तो इस वजह से हमारी जो मिट्टी चिकित्सा है, पानी चिकित्सा है, धूप स्नान है, मसाज है, वगैरह वगैरह, अलग अलग टाइप के जो स्नान है, अलग अलग टाइप का जो है हमारे उपवास है। लंघनम परमौषधम, फास्ट इज ए फास्ट क्योर। लंघन माने उपवास। अभी हमारे महाराष्ट्र में हम उपवास करते हैं, कैसे करते हैं उपवास? साबुदाण्याची खिचडी, शेंगदाण्याची उसळ, वेफर, कचोरी। हमारा उपवास वैसा नहीं है। हम उपवास में माने अगर समझो आपको जो है शॉर्ट फास्ट है तो जूस देंगे, नींबू पानी देंगे, नारियल पानी शहद डाल के देंगे, उसके साथ साथ में आपका जो है इलाज भी करेंगे, शरीर शुद्धि, डिटॉक्सिफिकेशन। अभी डिटॉक्सिफिकेशन ये क्या चीज है? डिटॉक्सिफिकेशन माने शरीर शुद्धि। आदमी पेशेंट बीमार क्यों होता है? जो हमारे गलत लाइफस्टाइल की वजह से शरीर के अंदर जो है कचरा जमा होता है, इसको हम टॉक्सिन्स बोलते हैं। तो टॉक्सिन्स हमको निकालना पड़ता है। जैसा जैसा टॉक्सिन निकलता है वैसे वैसे अपनी वाइटैलिटी या जीवन शक्ति वो बढ़ती है। वो जब नॉर्मल आती है तब आपका शरीर डॉक्टर नहीं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर का बाप बन जाता है। तो ऐसी भी बीमारी है वो ठीक हो जाती है। तो हम क्या करते हैं शरीर शुद्धि के लिए? हम क्या करते हैं? इस जहर हम कैसे निकालते हैं? हमारे पास अलग अलग चिकित्सा क्रम है। पानी चिकित्सा में हम लोग आपको कटी स्नान देते हैं, होल बॉडी स्टीम देते हैं, आपको स्टीम इनहेलेशन करवाते हैं, अलग अलग टाइप का बाथ देते हैं, सुबह उठने के बाद 1 लीटर पानी पीने के लिए कहते हैं। तो पानी चिकित्सा 50% जो आपका इलाज खुद ही कर देता है।
50% ऑफ नेचुरोपैथी पानी चिकित्सा, हाइड्रोथेरेपी। किसको पानी देना, कितना देना, ये सब चीज जो है हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ता है। हर पेशेंट का जो अलग अलग होता है, और जो है पानी का जो है लिमिटेशन होता है, उससे ज्यादा हम पानी या लिक्विड नहीं दे सकते। तो पानी चिकित्सा में जो है हम सिम देते हैं, जैसा पेशेंट आता है उसको कटी स्नान पानी में बिठा देते हैं। Sir? Sir, you're not audible. I would request to all the participants, please keep on hold. There is some problem with the speaker's network issue. Hello, am I audible? Yes, sir, you are audible. Yeah. So we were talking about detoxification. Now, similarly from कटी स्नान के बाद में जो है हम आपको एनिमा देते हैं। अभी मैंने बताया कटी स्नान देने के बाद आपका एंडोक्राइन ग्लैंड सब उत्तेजित होते हैं, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? ये हमारे शरीर चलाने वाले बाबू हैं। ये जो आपके पाचन संस्था है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है या सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये सब जो है चलाने के लिए जो है ये बाबू का जो है डायरेक्शन जाना पड़ता है, तब तक वो काम कोई नहीं करता है। सरकार जो है, मिनिस्टर सिर्फ अंगूठा लगाता है, सही करता है, सरकार चलाता है बाबू लोग। तो ये हमारे शरीर के बाबू हैं। तो ये उत्तेजित होते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, तो बाकी सब संस्था अपना अपना काम करना चालू करते हैं। तो हम जो है शरीर शुद्धि का काम चालू करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन इज रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स। ये टॉक्सिन्स क्या होता है? शरीर के अंदर बहुत कचरा जमा हुआ रहता है। कचरा कहाँ से आता है? अब हम लोग खाते पीते हैं, जो जरूरत है वो शरीर को मिल जाता है, जो जरूरत नहीं है वो फेंका जाता है। एक तो त्वचा द्वारा पसीना, वो एक टॉक्सिन है, वो निकाला जाता है। हम सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर वेपर फेंकते हैं। तो फेफड़े हमारे, लंग्स जो है एक एलिमिनेटरी ऑर्गन है। फिर बाद में हमारे गुर्दे, किडनीज, 2 किडनी भी है, उनका काम क्या है? पचने के बाद टॉक्सिन सहित ब्लड जो है थ्रू किडनी सर्कुलेट होता है। तो किडनी एक कॉम्प्लेक्स फिल्टर है, उसमें का जो है अमोनिया सॉल्ट जो जरूरत नहीं है वो सब निकाल के वो पानी में जो मिक्स करके उसको यूरिया बना के जो है ब्लैडर में फेंक देता है। ब्लैडर में वो यूरिन जमा होता है, और जब ब्लैडर भर जाता है वो बाहर निकाला जाता है। अभी यूरिन क्या है? यूरिन में जो है यूरिया मेजर पोर्शन है, इसके लिए यूरिन बोला जाता है। यूरिया कहाँ से आता है? हम लोग प्रोटीन्स खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, उसमें नाइट्रोजन का जो है एक्सेस जो है वो यूरिया में कन्वर्ट होता है। यूरिया नाइट्रोजन सॉल्ट है। और ये जो है किडनी जो है स्पेशल फिल्टर है, उस टाइप का फिल्टर है। तो वो खाली यूरिन को नहीं निकालता है, वो इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड को भी बैलेंस करता है, ये उसकी ड्यूटी है। एसिड बेस बैलेंस को भी जो है वो बैलेंस करता है।
जैसे आपका सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सब जो है बैलेंस करता है। सोडियम ज्यादा हुए तो पोटेशियम कम होता है, पोटेशियम कम हुए तो सोडियम ज्यादा होता है। तो हाइपरनेट्रियमिया, हाइपरकैलेमिया, ऐसे सब जो है एलोपैथी में जो बोला जाता है, ये जो है बिकॉज ऑफ किडनी डिजीज। तो किडनी जो है संभालना हमको जरूरी है। तो किडनी को हम पानी पीने के बाद किडनी फ्लश होती है। सुबह उठ के जो है ब्रश करने के पहले हम 1 लीटर पानी पीने के लिए बोलते हैं। तो 1 लीटर पानी जो है जो शरीर के अंदर जाता है, पेट में जो है एसिडिक जो एरिया है, एसिडिक ऑटोमेटिकली वो अल्कलाइन हो जाता है। अल्कलाइन माने वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और फिर बाद में पानी इस पूरे बॉडी में सर्कुलेट होके किडनी द्वारा निकल जाता है। स्टीम इनहेलेशन करते हैं हम। अब स्टीम इनहेलेशन जो है भाप लेना, पानी के अंदर एक पत्ता गोभी का पत्ता हम काट के डालने को बोलते हैं। उसमें 1 चम्मच कूटा हुआ हल्दी का टुकड़ा, हल्दी भी जो है हल्दी का पाउडर भी डालने के लिए बोलते हैं। और वो पानी उबाल के जो है नाक से और मुंह से हम भाप लेते हैं। तो जब भाप हम लेते हैं, ये जहां जहां ये भाप जाती है वो क्या काम करती है? आप जो है घर में जो है बाथरूम मैला होता है तो रात को जो है उसको ब्लीचिंग पाउडर लगा के रख देते हैं, दूसरा दिन सुबह फिनाइल से धो डालते हैं, तो बाथरूम चकाचक हो जाता है, सब टाइल जो है चमकने लगता है। वैसे ही जो है फेफड़े के अंदर का जो है ये बलगम बलगम जो चिपका हुआ है, ये सब पिघल जाता है, क्योंकि पत्ता गोभी में टार्ट्रोनिक एसिड नाम का ऑर्गेनिक एसिड है, वो उसको पिघल देता है। हल्दी है, हल्दी में जो है एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, तो वो भी जो है उसको फिर जो फिनाइल का काम करके जो है वो डिसइंफेक्ट कर देता है। और जो है पानी जो भी आप पीते हो सुबह में, उसके साथ में मिलके ये बलगम बलगम जो पिघला हुआ है वो उसमें मिक्स होके जो है किडनी द्वारा पेशाब के रास्ते से वो निकल जाता है। तो डे 1 पहले दिन से जो है आपको जो है एनर्जेटिक महसूस होता है। शाम को सुबह में 1 लीटर पानी पिया आपने तो शाम तक जो है आपको महसूस होता है। करके देखो, ये चमत्कारी ही तो है। एक ही दिन के अंदर तो आपको दिन में 2 बार जो है स्टीम इनहेलेशन करना है 7 दिन, क्योंकि ये बरसों का जो बलगम 1 दिन 2 दिन में नहीं जाएगा, 7 दिन करना है। उसके बाद में 2 महीने तक जो है हर हफ्ते में 1 बार करना है। तो आपके फेफड़े हम साफ किए, होल बॉडी स्टीम देके जो है आपका जो हमने जो पसीना निकाला तो उसमें जो आपका स्किन तो क्लियर किया। स्किन ऑल्सो इज एन एलिमिनेटरी ऑर्गन। किडनी का सुबह उठ के पानी का जो है हमने जो है ये कर दिया तो किडनी भी साफ हो गई। फिर रह गया पेट। और नेचुरोपैथी में जो है कब्ज या कॉन्स्टिपेशन, मराठी में इसको बद्धकोष्ठ बोलते हैं, ये बहुत बड़ा विषय है। हमारा स्लोगन ही होता है कि जिसका पेट हो साफ उसे सब रोग माफ, योग भगाए रोग। तो लोग क्या करते हैं, लोग कायम चूर्ण खाते हैं, त्रिफला खाते हैं जिसमें हरड़ा बिरड़ा और आंवला होता है। फिर बहुत सारे जो है एलोपैथी के दवाएं भी मिलते हैं, वो भी खाते हैं, मगर परमानेंटली जो है ये कब्ज खत्म नहीं होता है। ये कब्ज किसके वजह से होता है? ये जो है हमारा गलत रहन सहन वजह से होता है, गलत खाने के वजह से होता है, स्ट्रेस के वजह से हो सकता है, कम खाने की वजह से भी हो सकता है, ओवर ईटिंग ग्लटनी के वजह से भी हो सकता है। गांधी जी कहा करते थे कि ग्लटनी माने हावरटपना, खाओ जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, is a sin which can be compared to a rape or a murder. गांधी जी ऐसे शब्दों का जो है उन्होंने जो है उपयोग किया है कि रेप और मर्डर माने इतनी बड़ी जो है क्राइम है वो। ओवर ईटिंग, औरतपना, खाओ, तो ग्लटनी इज ए सिन विच कैन बी कंपेयर्ड टू ए रेप और मर्डर। और मैं उनसे सहमत हूं। एक बार हमने आपका पेट साफ किया, आंतड़ी साफ की, महीना 1.5 महीना लगता है, तो जो है आपका जो टोटल हुलिया बदल जाती है। 1.5 महीने के अंदर जो है
आप जो है, मैं लेडीज लोगों को बोलता हूँ जो 55 के बाद में जो इसको प्रॉब्लम वाले आते हैं उनको बोलता हूँ आई विल मेक यू 35 इन 2 मंथ्स, जो 100% हम जो बोलता है करो। 55 साल की लेडी जो है वो 35 साल की हो जाती है विद इन 2 मंथ्स। जिन्होंने किया है, जहाँ पर जो रेणुका मैडम है जो प्रैक्टिस करते हैं उन्होंने भी देखा है, ये कॉमन चीज है। यही जो एक चमत्कार है, कैसी बीमारी है वो ठीक हो जाती है। हम सिर्फ शरीर शुद्धि करते हैं। हम क्या करते हैं, बस्ती क्रिया, एनिमा, कोलॉन वॉश जो बोला जाता है, अलग अलग टाइप के एनिमा है अलग अलग चीज के लिए। मगर एलोपैथी में जो मैंने बोला, मैंने जो है 33 साल निकाले हैं, एलोपैथी बोलता है एनिमा से आदत पड़ जाती है करके। तो इसके लिए मैंने जो है लोगों को कैस्ट्रॉल देना चालू किया। साल में एक बार कैस्ट्रॉल देता हूं मैं। कैस्ट्रॉल जो है खाद्य तेल है, खाद्य तेल है। ये जो है गुजरात साइड में जो है लोग जो है चपाती के मोहन में जो है डालते हैं, और वहां पे जो है कैस्ट्रॉल लेने का जो है एक सिस्टम ही है। मैं एक बार 50 ml कैस्ट्रॉल लेने के लिए बोलता हूँ, और फिर बाद में जो है हर साल एवरी ईयर जो है ये बरसात के मौसम में जो है जून महीने में पहले हफ्ते में लेने के लिए बोलता हूँ। एक बार साल में एक बार लिया तो आपका पेट हमेशा साफ रहता है। तो कब्ज या पेट, फेफड़े, त्वचा और आपके गुर्दे ये साफ हो गए तो कचरा सब खत्म हो गया। तो आपकी अपना शरीर शुद्धि, शरीर शक्ति जो है, जीवन शक्ति, वाइटैलिटी जिसको हम बोलते हैं, इम्यून लेवल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, वो जो है रिस्टोर होता है। वो जो कॉम्प्रोमाइज हुआ रहता है वो लेवल पे आ जाता है। जब ये लेवल पे आ जाता है तो आपका शरीर डॉक्टर नहीं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं, सुपर स्पेशलिस्ट भी नहीं, उसका बाप बन जाता है। और ये महसूस करते हैं आप, हर रोज महसूस करते हैं ये जो है हो रहा है वो। इसमें कोई दवाई नहीं दी मैंने आपको, मेरी दवाई है खान पान। 80% ऑफ नेचुरोपैथी इज वीगन डाइट, और 20% है योगा। योगा माने अपने पतंजलि का अष्टांग योगा। तो इसमें हम जो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम का 4 चीज का हम प्रयोग करते हैं। फिर बंधा भी देते हैं, क्रिया भी बोलते हैं, आसना है, प्राणायाम है। वो सरल चीज जो हम जो है आधा 1 घंटा करने के लिए नहीं बोलते आपको। 15 मिनट 20 मिनट सुबह, 15 मिनट 20 मिनट शाम को, दिन में 2 बार जो है आसन प्राणायाम करना पड़ता है नियमित। और इसमें जो है कैसी भी आपकी बीमारी है, आप 15 दिन में फिट हो जाते हैं, और 2 महीने में जो है आप बीमारी भूल जाते हैं। यह है निसर्गोपचार। वीगन डाइट माने वेजिटेरियन नहीं, वेजिटेरियन माइनस डेयरी प्रोडक्ट्स, नो मिल्क, दूध नहीं, नो घी, नो बटर, नो क्रीम, नो पनीर, नो चीज। तो इसको हम वीगन डाइट बोलते हैं। उसके अलावा 4 वाइट पॉइजन हम आपको अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। ये पहला जो है दूध एंड प्रोडक्ट्स, दूसरा जो है रिफाइंड शुगर यानी शक्कर। आप मिश्री खा सकते हैं, जो खड़ी शक्कर जो बड़ी बड़ी टुकड़े जो आते हैं वो तो खा सकते हैं। अगर शक्कर आपको खाना ही है तो खड़ी शक्कर का पाउडर बना के खा सकते हैं। अगर ये रिफाइंड शुगर है, ये जहर है, इससे डायबिटीज नहीं होता है। डायबिटीज पेशेंट को जो हम जो है शक्कर कम देते हैं, मगर शक्कर खाने से डायबिटीज नहीं होता है। डायबिटीज होने का कारण अलग है। फिर हम शक्कर क्यों मना करते हैं? हम शक्कर इसके लिए मना करते हैं, आपके शरीर में का कैल्शियम चोरी करता है ये शक्कर। एक दाना भी शक्कर आप खाएंगे, वो शरीर का जो कैल्शियम, और जवानी में महसूस नहीं होता है। औरत 35 साल की होती है या आदमी जो है 45 साल का होता है, तब उसको मालूम पड़ता है घुटने में दर्द, जोड़ों में दर्द, कारण कैल्शियम डिप्लीट होता है। शरीर के लिए जो कैल्शियम की जरूरत होती है उसको मिलता नहीं रहता है। उसको जो समझो कम हुआ बॉडी के अंदर, वो जो हड्डी में से निकाल लेता है, मगर वो आपको जो है सिग्नल देता है कि बाबा कैल्शियम की मात्रा कम है।
तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो कैल्शियम की गोली देगा। कैल्शियम की गोली देने से वो उसमें का गोली में का कैल्शियम उपलब्ध करके देने के लिए जो है शरीर को जो काम करना पड़ता है, हम गोली नहीं देते। फिर हम क्या देते? हम खान पान में आपको कैल्शियम देते। तो लोग बोलते मेरे को, सर अगर आप मेरे को दूध मना करते तो कैल्शियम कहां से आएगा? अरे भैया, खाली दूध में जो कैल्शियम मिलता है वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अभी हम जो कैल्शियम देंगे वो सस्ता भी है, बढ़िया भी है, उसकी रेसिपी भी देते हैं आपको, कैसे खाना कैसा पीना करके। नाचनी, नाचनी आपने सुना है? रागी, रागी का जूस, वो कैल्शियम युक्त आहार है। बाजरी, बाजरी में भी जो है, राजगिरा, राजगिरा में भी जो है भरपूर जो है कैल्शियम है। ये सब सस्ता चीज है, कोई खाता नहीं है। नुकसान कौन करता है? गेहूं करता है। गेहूं बंद कर दो, डायबिटीज है, गेहूं बंद कर दो, राइस खाओ, मकई खाओ, जवारी खाओ, बाजरी खाओ, मकई खाओ, अपना बाजरा खाओ, नाचनी खाओ, उसकी रोटी बना के खाओ, मिक्स आटे का जो रोटी बना के खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। गेहूं मत खाओ। गेहूं में एक तो ग्लूटेन है, कब्ज होने का जो है दवाई, ग्लूटेन। उतना ही नहीं, उसमें ग्लियाडिन है और एमोलोपेक्टिन है। ये दो चीज जो है डायबिटीज को कभी ठीक होने नहीं देंगे। ये पैंक्रियास के ऊपर, पैंक्रियास में जो आइलेट्स ऑफ लैंग्रेंस है उसके बीटा सेल्स के ऊपर जो उसको काम करने नहीं देंगे, तो डायबिटीज कभी ठीक नहीं होगा। आप गेहूं बंद करो, शक्कर का चीज बंद करो, भरपूर कच्चा चीज खाओ, अपने आप आपका डायबिटीज चले जाता है। डायबिटीज के लिए और कोई चिकित्सा करने की जरूरत नहीं है। डायबिटीज पेशेंट को जो डेली ब्रिस्क वॉकिंग करना जरूरी है, आधा घंटा पसीना निकालने के लिए, और कुछ नहीं, कोई दवाई नहीं। टेंशन रहना नहीं चाहिए। मानसिक टेंशन है तो सुबह शवासन, शाम को शवासन, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करना और ब्रिस्क वॉकिंग करना, कोई दवाई की जरूरत नहीं। अपने आप जो है महीने भर के अंदर जो आपका आप भूल जाएंगे। तो ये हो गया शरीर शुद्धि। अभी शरीर शुद्धि के लिए हम जो है मिट्टी, पानी, धूप, हवा का जो है इस्तेमाल करते हैं। अभी पानी चिकित्सा जो है हमने इसलिए आपको बता दिया, हम कटी स्नान देते हैं। कटी स्नान का हमने बता दिया, जैसे हम पानी में बैठते हैं, जो आपके जो है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उत्तेजित होता है, वो जो सब को उत्तेजित करके वो ठीक करता है। उतना ही नहीं, जब हम जो पानी में बैठे हैं, हमारे गुर्दे पानी के अंदर होते हैं, हमारे जो यकृत, लिवर पानी के अंदर होता है, पैंक्रियास जिसको स्वादुपिंड बोलते हैं वो भी जो है पानी के अंदर होता है, आंतड़ी जो है, छोटी बड़ी आंतड़ी सब पानी के अंदर होता है। तो वो पानी में हमने जो है खाने का सोडा डाल दिया हुआ है, होता है अल्कलाइन बनाने के लिए पानी। आधा घंटा आप बैठेंगे तो अंदर का, पेट के अंदर का जो है, जो भी हमने जो है यकृत है, आपके जो है किडनीज है, पैंक्रियास है, इसमें के जहर जो है निकलना चालू हो जाते हैं, पानी में आ जाते हैं बाय प्रोसेस नोन एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो साइंस स्टूडेंट है वो समझे। When solutions of two different concentrations are separated by a semi-permeable membrane, the solution of the higher concentration enters into the solution of the lower concentration. अभी बाहर का पानी जो है लोअर कॉन्सेंट्रेशन का है, तो अंदर का जो है ब्लड में जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो उसमें का जो है जो जरूरत नहीं है वो चीज जो है पानी में आ जाती है। और आपको 3 दिन के अंदर लाइटनेस फील होता है, क्योंकि कचरा, वजन जो आप लेके घूम रहे थे वो कम होने चालू हो जाता है, हो जाता है। तो ये कटी स्नान हम देते हैं। फिर कई लोगों को मिट्टी का लेप देते हैं हम। मिट्टी का लेप में भी मिट्टी का जो है डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रॉपर्टीज है, वो मिट्टी जो है तैयार करनी पड़ती है। ये गटर की मिट्टी नहीं, बम्बई की मिट्टी नहीं, वो करने का एक तरीका होता है, उसका एक सिस्टम होता है। मिट्टी लाके जो है उसको धोना पड़ता है 3 दिन धोने के बाद में उसको जो है धूप में सुखाना पड़ता है। धूप में सुखाने के बाद उसको हाथ से जो है नहीं हैंडल कर सकते, उसको जो लकड़े से या कांच के या प्लास्टिक के इसमें से जो है उसको लेके उसको तोड़ के जो उसको छान के जो है भर के रखना पड़ता है। तो वो जो सनचार्ट हुआ रहता है उसमें इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से जो है उसमें जो है डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टीज भी आ जाती है। मिट्टी का लेप जो है
बहुत पावरफुल है किडनी डिजीजेस में, एब्डोमिनल डिजीजेस में, लिवर डिजीजेस में, सिरोसिस में वगैरह वगैरह। तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ शरीर शुद्धि करते हैं और आपको आहार से जो है रिजुविनेट करते हैं, जवानी लेके आते हैं। शुरुआत में हम आपको रॉ डाइट फास्ट 1 महीने के लिए दिया, और रॉ डाइट फास्ट में जो है हम आपको विटामिन देते हैं, प्रोटीन देते हैं, हम डाइजेस्टेड प्रोटीन देते हैं। डाइजेस्टेड प्रोटीन्स क्या होता है, अंकुरित आहार। अंकुर करने के लिए जो हम जो है ये मूंग जो है, मटकी, मसूर वगैरह जो है पानी में डाल के रख देते हैं, दूसरा दिन वो बांध के रख देते हैं। हाँ, स्प्राउट होने के बाद हम खाने को देते हैं आपको। उस पानी जो हम फेंकते हैं उसको पेशाब का बास आता है, तो इसका मतलब एक्सेस अमाइनो एसिड जो उसमें थे, वो यूरिया फॉर्म होने वाली जो चीज थी, वो सब पानी के निकल जाता है। दूसरा दिन जो है वो स्प्राउट होते हैं, अंकुर आता है। तो अंकुर होता है, उसके साथ साथ में विटामिन सी की भरपूर मात्रा, और उसके साथ साथ में विटामिन B12 नेचुरल फॉर्म में वो अंकुरित में मिलता है। आपको जो है बाजरी बोला है, नाशनी बोला है, कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, मैग्नीशियम मिल गया। इधर जो है आपको विटामिन B12 मिल गया। सुबह नाश्ते में हम पपाया देते हैं, खजूर देते हैं, आयरन मिल गया, विटामिन ए मिल गया। दोपहर को फल देते हैं खाने के लिए, उसमें भी फॉलिक एसिड मिल गया। हरी सब्जी का ग्रीन जूस देते हैं, उसमें विटामिन ई मिल गया। और ये सब जो समतुल आहार जब मिलता है आपको, अपने आप आपका जो है रिजुविनेशन हो जाता है। प्राणायाम से जो है हम जो आपको भ्रामरी प्राणायाम करने को बोलते हैं, वो अपने जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन को जो है उत्तेजित करता है। अनुलोम विलोम बोलते हैं, और ओमकार का जो है हम करने के लिए बोलते हैं। सुबह उठने के बाद आपको पवन मुक्तासन बोलते हैं और शवासन बोलते हैं रिलैक्सेशन के लिए। इतने सिंपल है। तो आप ये चीज करेंगे, खाना खाने के पहले 1 चम्मच अड़सी या जवस जिसको बोलते हैं, वो खाएंगे अखा निकलने का, पानी के साथ या छाछ के साथ, तो आपको कभी कब्ज नहीं होगा। लास्ट जो आइटम है जो डिटॉक्सिफिकेशन में, हम आपके 4 वाइटल ऑर्गन्स है। वाइटल ऑर्गन्स में है, एक तो ब्रेन, सेकंड है हार्ट, तीसरा है यकृत अपना लिवर, और चौथा है किडनी। किडनी और लिवर ये 2 वाइटल ऑर्गन है, जिसको हम आराम देंगे वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। आपको जो मैं दाल बंद कर देता हूँ और अंकुरित देता हूँ, तो आपका किडनी को आराम मिलता है, तो अपने आप किडनी ठीक हो जाती है। लिवर को मैं जो है उसका जो जरूरत का चीज है उसको देता हूँ, तेल बंद कर देता हूँ, फ्राइड फूड बंद कर देता हूँ, फास्ट फूड बंद कर देता हूँ, तो लिवर का जो है काम का भाई आराम होता है। रॉ डाइट देता हूँ, जिसकी वजह से लिवर का ज्यादा काम नहीं रहता है, तो लिवर को आराम मिल देता है। और लिवर को और किडनी को जब हम आराम देते हैं, वो 1 महीने के अंदर उसकी पुनर्रचना हो सकती है, वो ब्रांड न्यू लिवर और ब्रांड न्यू किडनी आपको मिल सकती है। और मसाज थेरेपी जो है हमारी इसके लिए है कि जो हमारे जोड़ों में जो यूरिक एसिड जमा होता है, उसके वजह से जो है पेन होना चालू हो जाता है, एक्सरसाइज नहीं होता है, तो हम जो मसाज करते हैं उसके बाद जो है हम आपको स्टीम देते हैं, होल बॉडी स्टीम देते हैं, तो उसमें ऐसे पिघल के जो है वो भी निकल जाता है। और आपके जो है विटामिन है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, सिर्फ फैट्स हम नहीं देते आपको, जो चर्बी बनने वाली चीज घी है नहीं देते हैं। तो 2 महीने के बाद में ये सब हम देना चालू करते हैं, तो मोटापा चले जाता है और आपके ऑलराउंड क्लींसिंग होता है, और ऑलराउंड इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है, और सब अपना शरीर अपने आप को ठीक कर देता है। अभी अगर समझो टाइम है 5 मिनट, तो किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। So, can you share us with the diet tips for constipation? Yeah, for constipation, as I told you, you have to go on a raw diet fast. No cooked food. Have 1 liter of water in the morning before brushing. That plays a very important role. Before lunch and before dinner, you just swallow 1 teaspoonful of flaxseed raw. Not roasted, raw. You have to swallow it whole, not chew it. Along with water, 1 teaspoonful before lunch and before dinner.
And after half an hour, you can have your dinner and your lunch. Okay, sir. And how much more, water minimum and maximum we could drink in a day? See, if you are a normal person, in a day, you have to drink 3 liters of water, an adult. If you have a heart problem, if you are under medication for a cardiac problem or hypertension, then you have to consult your physician for the quantum of water. If you have a kidney problem, there also you have to consult they will not allow you more than 1 liter of water a day. Any other? So there is one question from our viewers that's Yes. for excess bloating and gas. Beg pardon? Solution for excess bloating and gas. Yes. Now, what is bloating? Bloating could be because of indigestion, and bloating could also be because of constipation. See, when there is constipation, the stools which are impacted within the colon and which are not being thrown out by the body, which are supposed to be thrown out, they start putrefying, they start rotting. Gases are generated. The gases cannot pass, so they come backwards and enter your stomach. In the stomach, the situation is acidic, the medium is acidic. That becomes more concentrated. As a result of which, these gases, the acidic content is increased, the pH increases, and automatically you get burning sensation and bloating, and sometimes even pain towards your lungs. That is called as what you call this is gas. It is because basically heartburn. It's known as heartburn. So this is because of gas. So if you have bloating, immediately want little relief, you have a glass of hot water into which half a lemon you have squeezed in. Within 5 minutes, you will feel the relief. But unless you take an enema or what you call relieve your colon and relieve yourself of constipation, till then your what you call complaint will sustain. Okay, sir. There is one more question. Any tips and solution for sinus? Sinus. Yes, sir. Okay. See, you have the maxillary sinus. We have the paranasal sinuses. You have the there are 4 sinuses in the what you call in the face, and these sinuses, they are filled in with a liquid called as the synovial fluid. Now, when there is a cold or when there is an infection, there is little inflammation and there is pain. So the best way is invariably sinusitis is caused by virus called as the rhinovirus. Now this COVID virus is what coronavirus is a brother or elder brother or sister of the rhinovirus. Now there is no treatment in any system of medicine for a virus. What we do is we build up your immune levels, and your body is capable of throwing it out, eliminating it. So you have to do steam inhalation, because these viruses do not survive for above 70 degrees. So, and you cannot take 70 degrees steam. You can take 60 degrees steam, I understand. But then they are rendered invalid or they are disabled. And then your body takes over. Steam inhalation. You have to load yourself with vitamin C. Avla, that is Indian gooseberry. Lemon juice. You can take up to 4 glasses of lemon juice per day. Half a lemon in each glass. No problem. Hot, you sip it with hot water, it tastes without sugar, without salt, without honey. Honey. Because if you add honey and if you are slim like me, then you will lose weight. Yes, sir. If you want to lose weight and if you are obese, then you can have honey. And if you have it with cold water, you will not give what you call the relief for your complaint of sinusitis. Oh. You will put on weight because you are adding honey, if you have added honey. But if you want relief, you can have it plain. It tastes nice. I make it a point to have every night 2 glasses of water. People have beer, so I have 2 glasses of hot water, boiling water. I squeeze half a lime in each and keep drinking, keep sipping it. You enjoy and keep doing your work. Okay, sir. The last question we'll take from the viewers. That is what we can do for rheumatoid arthritis. Yes, rheumatoid arthritis is basically an autoimmune disorder. Your immune levels have been compromised. And how do you know that? When you see your blood report, your CBC report, you get something called as differential count, where you get the number, the count of neutrophils, eosinophils, lymphocytes, monocytes, and basophils. Now, if your monocytes are even 2%, that means your immune compromise is happening.
Whereas in Western medicine, up to 10, they say nothing doing. Whereas we, even if it is 1%, I say no, I have to build up our immunity. And invariably, one of first cause is constipation. So for rheumatoid arthritis, ideally, one should come to me. I will take about 2 to 3 hours looking at his reports and taking the history, because I have to see for what duration it is. I have to take the family history, and only then we can ascertain and find out as to what is the type of treatment has to be given. Okay, sir. Yeah. Thank you so much, sir, for your wonderful talk. Yeah. You give me 2 minutes more. You want, okay. You give me 2 minutes more. See, in allopathy, in naturopathy, there is no allergy, there are no side effects, or there are no adverse drug reactions. One tip I wanted to give you is, people consume soya bean as a high protein diet. I am against soya bean, and I will advise you not to have soya bean and never to give children soya bean. Now, if you go through the internet on soya bean, you'll get a lot of information. See, soya bean contains phytoestrogens, that is plant-based female hormones. As a result of which, young girls, if you give them regularly miso, tofu, products of this thing, what we call chunks of soybean, and use soybean as food, they will suffer from a condition called as precocious puberty. By the time they are 4 or 5 years old, they will start getting their periods. It's very common. That no doctor will tell you, because it is the soya mafia which is selling the soya bean. Secondly, it is given because it contains all the 23 amino acids as a high protein diet. But soya bean, if you go through from the what you call its contents, you will get it from the Google. It has protease inhibitors. Now, what is protease? Protease is an enzyme which is produced in the body. So this soya bean has protease inhibitors. Now, protease job is to convert, the last stage conversion, from peptones into peptides. And these peptides are then absorbed in the body. That last stage conversion is done in the presence of the enzyme protease. Now, if soybean contains protease inhibitors and though didn't allow what you call the protein to be digested, then whatever what you call soybean you have eaten, you don't get any of the proteins. It is thrown out as morbid matter. Third thing is, it contains 1000 times more aluminium than any other pulse. Your best pulse would be moong dal, tur dal, urad dal, masoor dal. All these things are, or any pulses you can have. You have rajma, no problem. But no soybean. Soybean is a poison. It contains more amount of phytic acid, which prevents the absorption of rare minerals like chromium, manganese, etc. at the gut. So this phytic acid is there, present in every pulse. It is to keep the life within the seed. So in soybean, it is a little extra, and that will have this side effect. So for these reasons, I will not recommend anybody soybean. That is one. Secondly, from your homes, you should eliminate all plastics, plastic utensils, plastic bags. Let us fight against plastics. You should never use non-stick because they are Teflon coated. They are highly carcinogenic. That smoke that comes is highly carcinogenic. Thirdly, you must not use a microwave oven. A microwave oven destroys the nutritional content of the food. So there's no point in microwaving that food. I am against using a cooker also, pressure cooker also, because it does not cook. It breaks. Ideally, one should use, of course, it's not practical in Mumbai, earthenware or stainless steel. So no aluminium, no microwave, no plastics, and no non-stick Teflon coated items. Secondly, you are using oil at home, and we get different types of oils in the market. My advice to you as a naturopath, we humans are supposed to consume only 4 different types of, we Indians are supposed to 4 different types of oils. One is coconut oil for Karnataka and Kerala. Second is still oil, sesame seed oil for Tamil Nadu. Third is groundnut oil for Andhra, Maharashtra and Gujarat. And all the rest of the states, mustard oil, that is sarson ka tel. Our forefathers have been eating that oil. These are the only 4 edible oils, mind you, not refined oils. If you can get cold pressed, that is Ghani oils, fine.
But even if you get filtered oils or double filtered oils, they're also fine. No refined oils. No refined oils. Now, you are using sunflower oil, cottonseed oil, rice bran oil, curdy oil, and sunflower oil, safflower oil, and all these things. These are all vegetable oils, not edible oils. No palm oil, no soya oil, even by mistake. And no refined oils. No refined oils. You go to any skin specialist, you will see a lot of people waiting there. It's all because of these edible oils, because of palm oil. Whether it is Britannia, whether it is Parle, all the food industries, whether it is Haldirams or the Garden Farsan, everybody is using palm oil. It's available for 30 rupees a kilo. And that is responsible for all these problems, skin problems. So use only edible oils. You ask yourself which is the oil that my forefathers used. If you are in Maharashtra, you can use groundnut oil, filtered, no problem. KK brand is very good. KK brand is very good. So this is about edible oils. These two things I wanted to inform you. And for calcium, because we don't get from the normal diet that we have, if we stop milk. So bajri, nashni, that is ragi, rajgira, and jeera, ajwain, all these things you will get. Not only calcium, phosphorus, zinc and magnesium, all the three. Zinc is required for healing in natural form. And the powders, chili powder, that is red chili powder, cumin seed powder, black pepper powder, and haldi powder, turmeric powder. You should not buy from the market. They are adulterated. You buy whole haldi and make powders. Other powders you can make it at home in your what you call dry grinder. Jeera, dhania, lal mirchi, all these products you can make. Because there's a lot of adulteration taking place. I was not aware of it. I happened to meet one director who happened to be the director. He's a chemist, of course, doctorate, and of fragrances and essences Institute of India at Kannauj in UP near Lucknow. And he told me the amount of rose water they produce and the amount of rose water, the number of tons they sell, at least 10 times of what they produce. Means all that is synthetic. You get synthetic colors, edible colors and all that. But as far as possible, have only natural foods. And regards oil is responsible for all your problems. Don't worry about cholesterol. Your cholesterol is your cholesterol. My cholesterol is my cholesterol. My blood pressure is my blood pressure. At any given time, my blood pressure is 90/68. That does not mean that I have low blood pressure. It is normotensive. I am perfectly normal. Normotensive hypertension. If it's slightly high, also nothing to worry. So don't take medication. Don't take medication. And my telephone number you can get from Renuka ma'am. Anytime anybody has a problem, they can call me over the telephone after 8 p.m. I will answer. Simple thing. It's not that you have to come and meet me or anything. I will solve your problems over the telephone. Yes. Anything else? I think that's all from my side. Yes, sir. Done. It is indeed wonderful to gain so much from you, sir. Maybe we'll keep one more session of yours. Now I would like to invite Alkesh Shah, committee member of Kash Foundation's Kash Swasthya Manthan, to give concluding remarks for today's session. Hello. Hello. Yes, sir. Am I audible? Yeah. Good evening, everybody. First of all, I would like to thank Kash Foundation for keeping such an excellent session, which was very informative. I thank Dr. Kamath for not only the informative session, but also based on the practical knowledge and practical experience which he has gained throughout this life of his pharmaceutical line as well as the naturopathy line. A person from pharmaceutical line coming into the naturopathy line is a great boon and very much helpful for the human existence. Now I would like to stress on some points which Dr. Kamath has said, that his main
plus point is whatever he has said is that he is still a student of naturopathy, because it's a great thing to listen this thing, because nowadays people don't understand. They gain some knowledge and say that I am an expert, but such a person like Dr. Kamath, who says that every patient teach us something. So being a student of naturopathy lifelong is a great, indeed a great good gesture from him. His different topics regarding the nature, how to balance your disease, how to stop your disease, mainly the mitti, pani, dhoop, hawa, and the laws of nature. A human being, if follows proper laws of nature, there will not be any disease in them. He has mainly has, also stressed on that thing that he is not against any of the treatment or any of the चिकित्सा पद्धति. कोई भी चिकित्सा पद्धति से वो खिलाफ नहीं है. वो इतना भी मानते हैं कि हर चिकित्सा पद्धति में चमत्कार होता है, लेकिन अगर वो पूरी तरह से प्रॉपर उसको फॉलो किया जाता है तो वो चिकित्सा पद्धति से वो काम में आती है. ऐसा नहीं है कि नेचुरोपैथी वही चिकित्सा पद्धति अच्छी है, बाकी सब ठीक नहीं है करके. दूसरा उन्होंने जो बताया कि रॉ फूड इज गॉड फूड एंड कुक फूड इज डेविल फूड, ये एक बहुत बड़ी बात है जो हम लोग बहुत जन नहीं जानते इसको, या जानते हो के होते भी अनजान रीत से बिहेव करके अपन उसको फॉलो नहीं करते हैं. उन्होंने कहा रॉ डाइट एक मिरेकल डाइट है, और सिर्फ डाइट ही नहीं और दवाइयाँ ही नहीं, लेकिन एक प्रेयर भी एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है. वो बिलीव करते हैं गॉड में. जब भी उन्होंने बताया कि मैं कोई भी पेशेंट को लेता हूँ तो पहले वो भगवान से परवानगी लेते हैं कि मैं उसको ठीक कर पाऊँ. और सबसे बड़ी बात कि वो उन्होंने कहा है कि जो वो ठीक नहीं करते हैं, उन्होंने कहा कि वो ठीक नहीं करते हैं, लेकिन वो नेचर अपने आप करते हैं. बॉडी हील्स, बॉडी माइंड सोल जो होलिस्टिक अप्रोच है उनका, वही उन्होंने बताया कि होलिस्टिक अप्रोच से अगर किया जाए तो पेशेंट ठीक हो जाता है. उन्होंने कहा कि बाकी पद्धति में जो दवाइयाँ और सिर्फ इलाज बीमारियों पे इलाज देते हैं, बट इन्होंने कहा कि बीमारियां छोड़ के अगर बॉडी माइंड सोल लेवल पे अगर किसी को ट्रीट किया जाए तो वो डेफिनेटली उसको वापस कभी बीमारी नहीं आती है. डिटॉक्सिफिकेशन टॉपिक पे उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया कि अपने को क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा फास्ट क्या है, फास्ट में क्यों नहीं खाना चाहिए. क्यों फास्ट करना है तो ऐसा नहीं कि सब साबुदाना, खिचड़ी, फरसान, कुछ भी ऐसा कचौरी खा के अपना दिन निकालना, लेकिन फास्ट करना है तो फास्ट प्योर कर ही फास्ट करना है. फिर शरीर में टॉक्सिन्स कैसे जमा होते हैं, वो जमा होते हैं तो जहर बन जाता है, उसको कैसे निकालना, वेरियस पद्धति से कैसे निकालना, उन्होंने सब बताया. और वो उन्होंने स्ट्रेस किया जो वेगन डाइट, वेजिटेरियन डाइट, मतलब एक बड़ी बात की उन्होंने की मिल्क नहीं लेके भी अपने को शरीर में कैसे कैल्शियम लिया जाता है. उन्होंने स्ट्रेस किया कि नेचुरोपैथी इस वेगन डाइट, उस 80% ऑफ द वेगन डाइट से अपना नेचुरोपैथी का काम होता है, और 20% वो आसन प्राणायाम योगा में मानते हैं. और उन्होंने कहा कि वीट नहीं खाना है, वीट जो खाते हैं तो इतना बॉडी को नुकसान करता है, उसके बदले बाकी बहुत सारे ऑप्शन है, मकई, बाजरा, जवार, ये सब करते हैं. फिर स्टीम लेना, कटी स्नान, फिर मसाज थेरेपी है, ये सब जो है ये सब प्राकृतिक वस्तुओं से अपन जो अगर फॉलो करें तो अपने को बीमारी आते हुए कितनी भी जरूरी बीमारियां निकल जा सकती है. और उन्होंने बड़े स्ट्रेस किया है कि वाइटल ऑर्गन्स पे, ब्रेन है, हार्ट, लिवर, किडनी, ये चीज को कैसे उसको डिटॉक्सिफाई करना है. उन्होंने वेरियस एग्जांपल देके भी जो बताया है वो एक सही मानों में देखा जाए कि बहुत ही उपयुक्त इंफॉर्मेशन जो उन्होंने दिया है. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उन्होंने जो ट्रेन ब्लास्ट में एक विक्टिम बनने के बाद में आज तक एक गोली भी नहीं ली है. उन्होंने जो विश्वास किया ये नेचर क्योर पे और भगवान पे जो विश्वास करके उन्होंने जो अपना एग्जाम्पल देके जो सब कर दिया है कि ये एग्जाम्पल से आप अगर डरोगे नहीं और प्राकृतिक जीवन की ओर से उसी तरफ से आप अपने आप को संभालोगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं आ सकती है. थैंक यू डॉक्टर कामत, और हम चाहेंगे कि हो सके तो एक दूसरा और एक सेशन आपसे होवे. ओवर टू यू नेहा. Over to you. Thank you so much, sir. Before we wind up, I would like to extend a gratitude towards our today's speaker, Dr. Narasimha Kamath, for his wonderful talk on amazing healing powers of nature. Thank you so much, sir. Thank you to all the viewers who joined us today. For more information, you can visit our website, www.kashfoundation.org. You can even follow us on Instagram and on Facebook. Myself, Megha Patel, a team member of Kash Foundation, signing off. Thank you.